everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 12th differential calculus, and our today's agenda of this class is second derivative, to study about the second derivatives. Okay, so guys अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो तो सिर्फ डेरिवेटिव्स था, ठीक है. तो अभी सेकेंड कैसे आ गया मैम, फर्स्ट तो हुआ ही नहीं, तो वही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, दैट डी वाई बाई डी एक्स है ना, जो अपन डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे थे किसी भी फंक्शन को देख करके, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज नोन एज योर फर्स्ट डेरिवेटिव्स. क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव? बिकॉज यू हैव गिवन विद वन फंक्शन एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन वन टाइम, दैट्स व्हाई इट वाज first derivative. Okay, so what about the second derivative? If whatever the value we are getting dy by dx, if I want to differentiate it one more time, I mean I want to make d by dx of dy by dx, so it will become d2y upon dx whole square. ठीक है, जिसको अपन होल स्क्वायर ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको अपन नॉर्मली ऐसे ही लिख देते हैं. So this represents your second order derivative. This is the representation of your second order derivative. ये d के बाद में जो कुछ भी नंबर लिखा होता है ना, this represents your order. अगर मैंने ऐसा लिखा होगा तो d3y dx क्यूब, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे अगर n लिखा होगा तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, जो शायद आपके मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाएंगे अपने आने वाले वीडियोस में. ओके, सो गाइस लेट मी रब इट एंड लेट्स हैव वन और टू क्वेश्चंस सो दैट आई कैन टेल यू द कोर आइडिया अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. आई हैव लिस्टेड फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर ऑफ योर एक्सरसाइज 5.7. I have taken question number 1, question number 6 and question number 11 just to tell you, just to introduce you with this new topic of calculus, second order derivatives. Okay, so let me rub it. I know that you all have done your all the questions of your first order derivatives and आप सबकी mastery हो गई होगी, ठीक है. So let's have it. ठीक है, करते हैं अपन question number 1. It is very simple topic. Y or fx is given as, I can write this fx as y. Okay, ठीक है, आप fx लीजिए, that represents function of x, या फिर y भी क्या है, function of x ही है. So I'm writing it y is equals to x square plus of 3x plus of 2. So first time differentiation कर रहे हैं, differentiation first time. So it will be dy by dx. I mean I'm putting the operator both side. This d by dx is the operator of differentiation. So it will be 2x. This will give you 3 and this will give you 0. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, 3x विल बी 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विल बी 0. तो इसको अपन नहीं लिखते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है. अगेन डिफरेंशिएट इट. सो व्हाट विल हैपन, आई एम टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेम डी बाई डी एक्स टू द राइट हैंड साइड. सो it will become d2y by dx square and this will be d by dx of 2x will give you 2 and d by dx of 3 will give you 0. It means d2y by dx square will be equals to 2. This is my answer. ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन का आंसर कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन में हो सकता है, नॉर्मल कोई नंबर हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 5.7. So guys, I guess it is one of the very easiest question of your this exercise. So let me rub it. Let me have the question number 6. I've taken the exponential and multiplication of exponential and one trigonometric function. So let me have the solution. Question number 6. So question number 6 is, I'm again writing the question over here. y is equals to e to the power x sine 5x. Okay. Y is equals to, just wait a minute. Okay, y is equals to e to the power x sine 5x. So I'm taking differentiation to the left hand side and to the right hand side. So it will be, the first time you need to apply the multiplication of the two functions. ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला है आपका मल्टीप्लिकेशन का. So it will give you dy by dx and this is first function, differentiation of sine 5x will give you cos 5x and 5x का again एक बार differentiation will give you 5. Okay, after that plus sign, then sine 5x and differentiation of e to the power x will give you e to the power x. So guys, here you can see it is dy by dx and it is equals to 5 e to the power x cos of 5x. What about this?
I can see that this is nothing but your y. This is nothing but your y. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास में जब भी आपको, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, आप इस वैल्यू को कुछ रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग इट एज y. ओके, नाउ this is the value of your dy by dx. okay, this is the value of your first order derivative. after that आपने थोड़ा सा इसको क्या लिख दिया, y लिख दिया. and from here I want to differentiate it one more time because I want to find out the second order derivative. ठीक है, so this will be d2y by dx square and this will become d by dx of 5ex cos of 5x and plus of y. So this will be first function, this will be my second function for the first function. Okay, so this is first function, differentiation of cos 5x will give you minus of sin 5x and then again 1 5 plus of second function and differentiation of this function will give you 5e to the power x only. Get it? Now differentiation of y will give you dy by dx. Wow, very nice. इसको solve करने की जरूरत नहीं है, ये already है आपके पास में. ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, वहां पे y को सब्स्टिट्यूट कर दिया है फ्रॉम क्वेश्चन. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई द होल स्टेप. सो इट विल गिव यू 5 into 5 will give you minus of 25 e to the power x sin 5x and this will be 5 ex cos of 5x. and what was the value of dy by dx? This was the value of dy by dx. so it is 5 into ex cos 5x now plus of ex sin 5x. अब क्या करना है, आप सिर्फ ऐड सबट्रैक्ट कर लीजिए. यू कैन सी ये दोनों टर्म ऐड हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल गिव यू 10 e to the power x cos of 5x एंड व्हाट अबाउट दिस टर्म एंड दिस टर्म. ओके, ये दोनों टर्म सबट्रैक्ट हो सकते हैं. देखिए e to the power sin 5x है, यहाँ पे भी e to the power sin 5x है, बट दिस इज minus 25 and this is 1. so it will give you minus of 24 e to the power x sin 5x. So this is my answer. Okay, if my calculation is good तो मेरा आंसर करेक्ट आया होगा. ठीक है, अपन ने क्या किया था, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई अपन ने डिफरेंशिएशन की. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, देन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. आफ्टर दिस आई हैव जस्ट रीअरेंज्ड दिस टर्म, सो इट विल बिकम, दिस विल बिकम y, this will become y. now here I have done again differentiation, so it will give you like this. First function differentiation of cos 5x will give you minus of sin 5x, then differentiation of 5x will give you 5 plus second function and differentiation of 5 e to the power x is equals to 5 e to the power x plus of differentiation of y will give you dy by dx. बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखना है और अपने को सिंप्लीफाई कर देना है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, question number 6 of your exercise number 5.7. so I hope you are getting it very easy. second order derivatives बहुत ही आसान है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने लिया है जहां पे मुझे कुछ प्रूफ करना है. ठीक है, करके देखते हैं इसको. जो आपके 5.7 के प्रूफ्स है दैट आर दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. उसको आप जरूर अपनी कॉपी में लगाइए एंड इन केस यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स और आप मेरे को मेल कर सकते हैं. मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी गिवन है. ओके, एंड वॉच कीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोस को जहाँ पे आपको कैलकुलस के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. सारे एक्सरसाइज मैंने एनसीईआरटी के सॉल्व करवाए हैं आप लोग को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है, वहाँ पे जाइए और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए. और मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस के साथ में मिलेंगे, मिसलेनियस एंड हो सकता है कि हम उसके बाद वाले वीडियो में कुछ MCQs लगवाएं विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर 12th बोर्ड एंड योर IIT JEE मेंस. ओके, सो गाइज लेट मी हैव क्वेश्चन नंबर 11. Here I need to prove this value. Y is equals to 5 cos x minus of 3 sin x. Okay, 5 cos x minus of 3 sin x. पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यार, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो. So this will be dy by dx and it will give you 5 minus of sin x and minus of 3 and it is cos x. बहुत ही सिंपल था, है ना. कैसा था, बहुत ही सिंपल था. ठीक है, नाउ वन मोर स्टेप आई वांट टू डू द डिफरेंशिएशन वन मोर टाइम. सो इट विल बी लाइक दिस. इट इज 5 माइनस तो रहेगा यहाँ पे, साइन एक्स विल गिव यू कॉस एक्स, ये माइनस है 3 cos x will give you minus of sin x. After differentiation I mean, after differentiation cos x will give you minus of sin x. So it will be minus of 5 cos x and plus of 3 sin x.
If I want to make one minus sign common, it will become 5 cos x minus of 3 sin x. Oh my god, मैम आपने तो इसको पूरा y बना दिया है ना. You can see that it is definitely same as your y. जैसे मैं इसको सॉल्व कर रही थी ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा अपनी निगाहों से, तिरछी निगाहों से कहाँ देख रही थी, क्या प्रूफ करना है ना. तो जब भी अपन पेपर बनाते होते हैं या फिर क्लास में वर्क करते होते हैं तो क्या प्रूफ करना है, ठीक है, उस पर हमारी निगाहें होनी चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की तरह जो सिर्फ तोते को देख रहा था, तोते की आंख को, मतलब बाकी लोग सराउंडिंग्स को देख रहे थे, वो तोते की आंख को देख रहा था, ठीक है ना. वैसे अपने को देखते रहना है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, और वैसे ही अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, क्या क्या किसी और के जैसा बनाना है क्या, वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो हियर आई कैन सी दैट इट इज नथिंग बट वाई, इट इज नथिंग बट वाई. सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू एंड नाउ यू कैन सी दिस y will come in the left hand side and it will become plus. एंड अब देख रहे हो कि मेरा प्रूफ दैट जो है वो प्रूफ हो चुका है, इट इज +5 एंड इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कि कैसे परफॉर्म करना है अगर मेरे पास में नॉर्मल क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, और अगर मेरे को प्रूफ दैट गिवन रहेगा तो क्या करना है. ठीक है, आपके पास में और भी प्रॉब्लम्स है, आपके एनसीईआरटी में जाइए, सॉल्व कीजिए. ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स. ठीक है, और थैंक यू. We'll meet in the next lecture with the miscellaneous of your calculus and MCQs of your calculus. Thank you for watching this video.